Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a figure shows two blocks A and B, each having a mass of 320 gram, connected by a light string passing over a smooth light pulley. The horizontal surface on which block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. Initially, the spring is vertical and unstretched. When the system is released to move, find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. Take the value of G as 10. Fine. So देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है. Mass of each block is given, that is 0.32 kilogram, right? Spring constant is given 40 Newton per meter. Initially the spring was in its natural length and that is given 0.4 meter. And ये जो surface है on which block A can move is smooth. Further, this pulley is also smooth and string and the pulley is light. So we have to find out the speed of the block A when the contact between the horizontal surface and the block A will break, right? At that particular time we have to find out the velocity of the block A. Fine. So what will happen when you will release this system from rest? So इस diagram में बात करते हैं. So देखो what will happen because of the weight of block B, right? Because of the weight of block B, ये जो block B है ये downward move करेगा and if the block B moves downward, so जो block A है वो forward move करेगा. Fine. So let's assume at time t is equal to 0 we release this system from rest. So at any general time t, what will happen? The displacement of the block A will be in forward direction, something like this. So this will be the position of block A at time t, right? So the string this spring will be elongated, right? Let's assume that the elongation in the spring is x. So what will be the length of the spring? That will be 0.4 plus x. Initially the length of the spring is given 0.4 meter. So you know when there is some elongation in the spring, so let's assume that it is elongated by some length x. So the final length of the spring at time t will be 0.4 plus x. And you can see it is tilted, right? ये जो spring है ये tilt हो गया. So let's assume that the angle between the horizontal and the spring is theta. Now if you draw the free body diagram of the block A at this position, how many force will act? एक तो इसका weight लगेगा, that is vertically downward. There will be a normal reaction from the surface in the upward direction, and there will be a force by the spring. You can see if there is some elongation in the spring, there will be a force exerted by the spring on the block. किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. और कितना फोर्स होगा? K into x. K is the spring constant and x is the elongation in the spring. Fine. So if you take the component of this kx, so one component of this kx will be in the upward direction. इस डायरेक्शन में होगा. और कितना होगा? kx का sin theta, right? और इस डायरेक्शन में होगा kx का cos theta. And there will be a tension in the forward direction in this block. So this is the free body diagram of the block. Now you can see that there is a force acting in the upward direction, that is kx sin theta, and as the block moves forward, the elongation in the spring will kept on increasing. जैसे जैसे आपका जो block A है वो आगे की तरफ move करेगा, so जो x का वैल्यू है, that is the elongation in the spring, वो increase करता जाएगा. So ऊपर का जो कंपोनेंट है kx sin theta ये increase कर रहा है, और नीचे का जो कंपोनेंट है, that is mg, वो constant है. So there will be a point of time, at one point of time what will happen, the kx sin theta will be large enough to balance the weight of the block. At that particular moment the normal reaction will become 0. So we can equate kx sin theta to the mg. So at this point we can say that the contact between the block and the surface will break. So can we find out the value of x from here? So let me substitute the values. The value of k is given 40 into x into sin theta. Actually you have to put sin theta in terms of x, right? Because we want to find out the value of x. So देखो ये जो right angle triangle है, ये वाला side is given 0.4 meter. This length hypotenuse 0.4 plus x. So this angle is theta. So what will be the value of sin theta? That will be 0.4 upon 0.4 plus x.
this is the value of sin theta, that is equal to mg. M is given 0.32 and g is 10, so that is 3.2. So from here you can find out the value of x easily, right? ये कितना हो गया 16 x, that is equal to 0.4, so 1.28 plus 3.2 into x, so 12.8 x, that is equal to 1.28, right? So from here what is the value of x you are getting? That is 0.1, right? So 10 centimeter. So when the elongation in the spring will be 0.1 meter, then the contact between the block and the surface will break. Can you find out the displacement of this block A when the elongation in the spring will be 0.1 meter? Of course, देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0.1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस? दैट विल बी 0.3 मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम. वी कैन इजीली फाइंड आउट, राइट? फाइन. सो आप देखो when the displacement of the block A will be 0.3 meter in the forward direction, then the contact between the block and the surface will break, right? Fine. So we have to find out the speed of the block A after it has traveled a distance of 0.3 meter on this horizontal smooth surface in the forward direction. Fine. So अभी कैसे कर सकते हैं? Again इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं. Either we can use work energy theorem, or we can also do this problem by Newton's laws of motion. आप किसी भी approach से करो, you will get the same answer. So let's solve this problem by both the methods one by one and verify our answer. So जैसे अगर मैं work energy theorem की बात करूँ, so work energy theorem says that work done by all the forces that should be equal to change in kinetic energy. Now here you have to choose a system. So I am taking my system as the two blocks. I am taking the two blocks as my system. So work done by all the forces on this system of two blocks, that is equal to change in kinetic energy of this system of two blocks. Fine. So पहले बात करते हैं कि ये जो ब्लॉक का सिस्टम है, टू ब्लॉक सिस्टम है, इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं. आप देखो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो टेंशन लगेगा, एक there will be gravitational force of attraction, that is the weight of the two blocks, mg लगेगा, and एक spring force लग रहा है block A पे, right? So there is a force that is applied by the spring, that is a spring force, and there is a normal reaction applied by the table on this block A, right? So ये चार forces लग रहा है. So work done by all these forces means work done by tension plus work done by gravitational force plus work done by spring force plus work done by normal reaction, that is equal to change in kinetic energy of the system. Fine. अभी बात करते हैं work done by tension on the system of block, that will be 0, है ना? ये हमने डिस्कस किया था. जितना पॉजिटिव वर्क टेंशन ब्लॉक ए पे करेगा, सेम नेगेटिव वर्क होगा ऑन ब्लॉक बी, राइट? सो कैंसिल हो जाएगा, और यही इक्वेशन हम यही जो प्रॉपर्टी है इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द relation between the velocity, right? That is the constraint relation. Fine. So हमने डिस्कस किया था that work done by the tension, net work done, जो total work done होगा of the system on this system, right? The net work done by the tension on the system is 0. Individually work होगा, there will be some work performed by tension on block A, there will be some work by tension on block B, but the net work done, देखो जो टेंशन वर्क करेगा ए पे वो वर्क पॉजिटिव होगा, और जो टेंशन वर्क करेगा बी पे वो जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. फाइन. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन 0 बिकॉज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ ब्लॉक ए पे लगेगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? mg की बात करते हैं. सो वर्क डन बाय mg, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? सिस्टम के टर्म्स में बात करेंगे. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. देखो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, राइट? द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। सो यहाँ से चेक करो जो डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा यू ई दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस डेल्टा के दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आ रही है आप देखो क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। ई क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। what we are getting is change in mechanical energy is equal to 0, or we can say that mechanical energy of the system is conserved। but कौन सा सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है वो आ रहा है स्प्रिंग प्लस 2 ब्लॉक्स। ये सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व है, राइट। इनिशियली हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने सिस्टम अपना 2 ब्लॉक सिस्टम लिया था, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ the system that is spring plus 2 block system that will remain conserved, right। और ये जो इक्वेशन है ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बिकॉज व्हेन यू नो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन अ सिस्टम। और किस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग प्लस 2 ब्लॉक सिस्टम। वहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो रहा है और एक जो वर्क हो रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। इसके अलावा कोई वर्क नहीं हो रहा है, देयरफॉर वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। फाइन, सो what is delta ug? delta ug कितना होगा, एम जी डेल्टा एच, राइट। जो ब्लॉक ए है उसका पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसका हाइट चेंज नहीं हो रहा। बट जो बी है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, एम जी डेल्टा एच। एम कितना है 0.32, जी कितना है 10, और डेल्टा एच कितना होगा, ये आपका एच इनिशियल था और एच फाइनल क्या होगा, एच फाइनल जो ब्लॉक बी है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस होगा, 0.3 मीटर, राइट। वी कैलकुलेटेड कि जो ब्लॉक ए है वो फॉरवर्ड में मूव करेगा 0.3 मीटर, सो जो ब्लॉक बी है वो डाउनवर्ड मूव करेगा 0.3 मीटर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, दैट इज माइनस ऑफ 0.3। फाइन, सो दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी डेल्टा यू ई, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ ऑफ के इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। सो देखो हाफ ऑफ के 40 एक्स फाइनल, फाइनल जो एलोंगेशन था स्प्रिंग में वो कितना था 0.1, इनिशियल एलोंगेशन 0, इनिशियली द स्प्रिंग वॉज इन इट्स नेचुरल लेंथ। सो दिस इज द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा के। सो दैट इज डेल्टा के कितना होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट। के फाइनल कितना है, लेट्स अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम इट लूजेस द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो अगर जो ब्लॉक ए है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है विद द स्पीड v, सो जो ब्लॉक b है दैट विल मूव यू नो डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, राइट। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ मास, जैसे मैं यू नो इनिशियली पहले मैं ब्लॉक ए की लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ एम इज 0.32 इंटू वी स्क्वायर, राइट। और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपके सेकेंड ब्लॉक की होगी दैट इज ब्लॉक बी, राइट। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट, दैट वाज 0, क्योंकि इनिशियली दोनों ही ब्लॉक्स जो थे वो रेस्ट में थे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। फाइन, सो यहाँ से हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v। सो चेक करो, ये कितना हो गया 3, सो माइनस ऑफ 6 9, सो 0.96 प्लस ये हो गया 20 और 0.01, सो 0.2, राइट। और ये 2 कैंसिल हो गया, सो प्लस 0.32 इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर व्हाट यू आर गेटिंग इज 0.76 अपॉन 0.32 and take the root of this, that is equal to the speed of the block at the time it will lose the contact with the surface, and ये जो स्पीड है वो सेम रहेगी दोनों ही ब्लॉक्स के लिए। इस इतने ही स्पीड से जो ब्लॉक ए है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और जो ब्लॉक बी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, राइट। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फाइन, अब बात करते हैं यू नो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, एन एल एम से हम किस तरह से कर सकते हैं। फाइन, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। देखो किसी भी जनरल टाइम पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इनिशियली ये आपका ब्लॉक ए था, नाउ किसी जनरल टाइम पे आफ्टर टाइम टी लेट्स अज्यूम दैट जो ब्लॉक ए है वो कुछ फॉरवर्ड मूव कर गया, राइट। सो दिस इज़ द पोजीशन। सो लेट्स अज्यूम कि
the distance traveled by the block A is x, right? So what will be the length of the spring? That will be under root of 0.16 plus x square, right? यहाँ पे मैं जो x है, I am taking this surface as my x-axis on which the block A is moving. Why I am doing so? Because I want to find out the acceleration of the block. जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से किस तरह से निकाल सकते हैं, आप देखो, इफ़ आई नो द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक, इनिशियली जो ब्लॉक ए था वो रेस्ट में था. नाउ व्हाट आई वांट टू डू हियर इज आई वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए. इफ समहाउ आई कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, आप देखो कि जो एक्सेलरेशन होगा ऑफ ब्लॉक ए दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. वो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, राइट? x का फंक्शन होगा. देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज माई एक्स एक्सेस, और यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं इनिशियल पोजिशन पे, एंड द ब्लॉक ए इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सेस. सो आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक ए व्हेन इट इज़ एट एनी जनरल पोजिशन x, है ना? किसी जनरल पोजिशन x पे जब आपका ब्लॉक होगा तब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. सो कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सामने की तरफ टेंशन लगेगा, और एक फोर्स लगेगा दैट इज k इंटू ई. दैट इज k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड e इज द इलांगेशन इन द स्प्रिंग, राइट? सो इस बार मैंने x नहीं लिया, e मैंने यूज़ किया है बिकॉज x आई एम टेकिंग अलॉन्ग द x एक्सेस, राइट? सो e इज द इलांगेशन इन द स्प्रिंग. नाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e, दैट इज द इलांगेशन. देखो दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट? और इनिशियल लेंथ कितना है? 0.4. सो इलांगेशन कितना हो गया? दैट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैसे निकाला? ये पाइथागोरस थ्योरम से, राइट? ये जो साइड होगी ये 0.4 है और x इज द डिस्टेंस, राइट, अलॉन्ग द x एक्सेस. सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, राइट? दैट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो इलांगेशन कितना हो गया स्प्रिंग में? 0.4 से माइनस कर दो. दिस इज द इलांगेशन. ये फाइनल लेंथ है स्प्रिंग का और ये इनिशियल लेंथ है, दैट इज नेचुरल लेंथ. सो दिस इज द इलांगेशन. नाउ अगर आप देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. सो आगे की तरफ टेंशन है, नीचे mg है एंड नॉर्मल रिएक्शन है, एंड लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस ke. सो ऊपर की तरफ आएगा इफ़ दिस एंगल इज थीटा, राइट? सो ऊपर की तरफ आएगा ke, k इज 40. फॉर द टाइम बिंग लेट मी राइट k 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.4. दिस इज इलांगेशन ke into sin theta, right? And what will be the value of sin theta? You can check 0.4 upon under root of 0.16 plus x square, right? और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास आएगा के ई का cos थीटा, दैट इज के ई कितना है? अंडर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज cos थीटा? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइन. सो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, राइट? वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं है. द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा. सो इस डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिख सकते हैं f इज इक्वल टू ma, दैट विल बी t माइनस, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे अंदर ले जाओ. सो कितना हो जाएगा? k तो बाहर ही रहेगा, ये कैंसिल हो रहा है. सो x माइनस 0.4 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? और k का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज़ 40. सो दैट इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 0.32 इंटू एक्सेलरेशन. नाउ ब्लॉक बी की बात करते हैं. सो ब्लॉक बी सिंपल है, ऊपर की तरफ टेंशन है एंड डाउनवर्ड वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज 0.32 इंटू 10, सो 3.2, राइट? सो अगर जो ब्लॉक ए है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी? दैट विल बी ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो इसका इक्वेशन क्या आएगा? 3.2 माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 3.2 इंटू 0.32, राइट? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. सो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, सो देखो टेंशन कैंसिल हो रहा है, राइट? सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 3.2 माइनस 40x
plus 16x, I am taking this 40 inside the bracket, right? So 16x upon under root of 0.16 plus x square, that is equal to, अब राइट हैंड साइड में दोनों ऐड हो जाएंगे, so 0.64a. fine, so you can see that now you can write acceleration as a function of x, right? So if we know the value of acceleration, right, as a function of x, then what is the next step, that you have to write acceleration as v dv by dx, so that you can easily integrate this equation. अगर आप acceleration को यहाँ पे v dv by dx रखते हो, देन आप देखो dx को इस तरफ ले जाओ, सो आपका जो इक्वेशन आएगा 3.2 माइनस 40x प्लस 16x अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट? ये जो पूरा इक्वेशन है, इसके साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई dx, दैट इज इक्वल टू v dv बाय v dv, राइट? नाउ जस्ट टेक द इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक? इनिशियली द ब्लॉक A was at x is equal to 0. At that particular time, the speed of the block was 0, right? And finally, we have to find out the speed of the block A. So let's assume we have to find out v when the position of block A is 0.3 meter, right? At the distance 0.3 meter, the contact between the block and the surface will break. So you have to integrate this equation. So देखो ये जो इक्वेशन है easily integrate कर सकते हैं इसे, right? 3.2 that is 3.2x, 40x 20x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इफ़ वी टेक 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर एज सम अदर वेरिएबल, मान लो इसे m मान लो. सो ऊपर देखो, आप देखो 2x जो dx है, x dx का वैल्यू हम dm के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट? dm बाई 2, एंड देन वी कैन ईजिली इंटीग्रेट. सो ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम है, राइट? और काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है. और यहाँ पे कितना आएगा? v स्क्वायर बाई 2, राइट? फ्रॉम 0 टू v. सो ये v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. From here you can find out the value of v and check karna, you will get the same answer. Fine, I think we have discussed it and you have understood it. Fine, let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck.